My beloved brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, and my beloved children of God, और मेरे प्रिय परमेश्वर के बच्चों, we wish you a very, very happy Christmas. आप सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं। Celebrating the Christmas with joy. तो भी मैं जानता हूं कि आप सब के सब क्रिसमस को बड़े आनंद के साथ मनाने के लिए तैयार हैं, Because the Bible says in Luke chapter 2 verse 10, क्योंकि बाइबल कहता है लूका 2 अध्याय 10वें पद में, the birth of Jesus Christ brought forth a good tidings of great joy to all people. प्रभु यीशु मसीह के जन्म हर एक व्यक्ति के लिए एक सुसमाचार लेकर आया है। All sectors, all religion, all caste or all creed, all sorts of people are going to have a great joy. सारे वर्ग, सारे धर्म, सारी जाति, सारे देशों, सब के लिए ये एक आनंद का कारण है। Because of the birth of Jesus Christ. ये संभव हुआ यीशु मसीह के जन्म लेने के कारण। See, in the whole human being history, man history, there's no evidence when a child was born, the angels from heaven sang a song. मनुष्य के पूरे इतिहास में कहीं भी एक प्रमाण नहीं है जो बताता है कि स्वर्गदूत किसी के जन्म पर गीत गाए हों। But if you look at all the events what happened even before the birth of Jesus Christ and after the birth, angels appear in several times. मगर यीशु के मामले में हम देखते हैं कि जब वो पैदा हुआ और उसके पहले भी स्वर्गदूतों ने गीत गाए। So that means heavens came down इसका मतलब है कि स्वर्ग उतर के आ गया only for the birth of Jesus Christ. सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के जन्म के Even लिए। though on those days, even now, Jesus Christ is being called as the Son of God. उन दिनों में और आज भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाता है। So God Almighty seemed to be more unreachable to the human beings. परमेश्वर सर्वशक्तिमान अब मनुष्य के लिए और भी दूर प्रतीत होता है। That's why whenever we worship, we kneel down and bow down before Him. इसीलिए जब हम उसकी आराधना करते हैं तो हम घुटने टेकते हैं और दंडवत करते हैं, Because He is above the heavens. क्योंकि वो स्वर्ग से भी ऊपर है। He is in the highest heaven. वो स्वर्ग के अति ऊंचे स्थानों पर है। And He is more holy. वो बहुत ही पवित्र है। And He dwells in unreached light. वो ऐसी ज्योति में रहता है जिस तक पहुंचा नहीं जा सकता। He can't be put in any image or idols. उसको किसी मूर्त या चित्र में नहीं बसाया जा सकता। He can't be compared with any saint or hermit or a pastor or a bishop or anybody. उसकी तुलना किसी साधु या संत, पास्टर या बिशप या किसी से भी नहीं किया जा सकता। We are nothing when we are being compared with the stars. उन तारों से अगर हमारी तुलना की जाए तो हम कुछ भी नहीं हैं। Then how can we compatible with God? तो हम परमेश्वर से अपनी तुलना कैसे कर सकते हैं? That's why mankind was thinking God is such in a place that is not at all reachable. इसलिए मनुष्य जाति सोचा करते थे कि परमेश्वर ऐसे स्थानों पर है जहां तक हम कभी नहीं पहुंच सकते। But in the beginning it was not like that. परंतु आदि में ऐसा नहीं था। He was with Adam and Eve वो आदम और हव्वा के साथ था several years. कई साल। But when sin entered, परंतु जब पाप ने प्रवेश किया, God's presence went away. परमेश्वर की उपस्थिति दूर हो But गई। after 4,000 years, परंतु 4000 साल बाद He took compassion upon human beings उसने मनुष्य जाति पर करुणा दिखाई and He became in flesh. और उसने देह धारण किया, Same like us. हमारी तरह ही। That means He made it possible for a man to have a coherent or acquaintance with God. इसका मतलब है कि उसने संभव किया कि मनुष्य उसके साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता बना सके। That's why when Jesus born, the Gabriel told Mary, name him Emmanuel, that means God be with us. इसलिए जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, गब्रिएल ने मरियम से कहा कि तुम इसका नाम इम्मानुएल रखना। इसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। There was a man, as an only son of the father mother. एक व्यक्ति था जो कि अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र था।
His father was so cruel. उसके पिता बहुत ही निष्ठुर थे। He used to beat his son very brutally वो अपने बेटे को बहुत निर्दयता से मारते थे, for more than 21 years. 21 साल से भी ज्यादा। And this man was crying and crying right from the childhood. ये जवान आदमी अपने बचपन से रोता आया था। And whenever mother wanted the support of his only one son, the father used to kick the mother. अगर जब भी माँ अपने इकलौते पुत्र की मदद करना चाहे तो पिता उसको भी लात मारता था। But both were going to church. मगर दोनों कलीसिया जाते थे। In every festival time they were the first. सारे त्योहारों के समय में वो सबसे आगे रहा करते थे। The son always used to ask the mother, बेटा हमेशा अपने माँ से पूछता था, can I ever find the father's love? क्या कभी मैं अपने पिता के प्रेम को देख पाऊंगा? As he grown up, as he entered into college, और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ और कॉलेज में गया, he lost all the hope in God. उसने परमेश्वर के प्रति सारी आशा खो दी। He was just thinking, वो सिर्फ सोच रहा था, I even cannot reach my father. मैं तो अपने पिता तक नहीं पहुंच पाता हूँ। Whenever he used to see me, he get angry only. जब भी वो मुझे देखते हैं ऐसा लगता है कि वो उसको क्रोध आ What गया is the हो। use of going to church? कलीसिया जाने का क्या फायदा है? What is the use of worshiping God? परमेश्वर की आराधना करने से क्या फायदा है? And he started to have godless life, और उसने अपना जीवन परमेश्वर के बिना ही बिताना but शुरू not किया। with bad habits. मगर बुरी आदतें उसमें नहीं थी। He used to go on crying. वो बस रोता रहता था। He came alone college ground. वो उस कॉलेज ग्राउंड में He always used to be walking alone, वो हमेशा अकेला चलता रहता था and he used to cry. और वो रोता And रहता when he था। was crying all alone, जब वो अकेला रो रहा था, suddenly Jesus appeared अचानक से यीशु आ गए। as the same human flesh उसी शरीर में आकर came near him, उसके पास आते हैं। and this guy just turned his face. यह आदमी अपने चेहरे को फेर लेता है। But Jesus told him, मगर यीशु ने उनसे कहा, turn your face unto me. अपने चेहरे को मेरी तरफ मोड़ो। I am God. मैं परमेश्वर हूँ। I am the God of love. मैं प्रेम का परमेश्वर I हूँ। am Emmanuel. मैं इम्मानुएल हूँ। And he made him to sit on his laps यीशु ने उसको अपने गोद में बिठा लिया and wipe away his tears और उसके आंसुओं को पोंछ डाले and said unto him, और उससे कहा, my son, मेरे बेटे don't feel depressed. निराश ना हो। Don't feel of attempting suicide. आत्महत्या करने के बारे में कभी ना सोचना। I am God मैं परमेश्वर हूँ and I manifest in flesh. और मैं शरीर में आया हूँ। Still I am in this world. मैं अभी भी इस संसार में हूँ। And I came all the way from heaven मैं स्वर्ग से उतर के आया हूँ to comfort you. ताकि मैं तुझे सांत्वना दे सकूं। Will you forgive your father? क्या तू अपने पिता को क्षमा कर पाएगा? And then he was crying. उसके बाद वो रोने लगा। And he replied, yes. उस आदमी ने कहा हाँ। And then he bowed down and said, फिर वह दंडवत करके कहता है, now I have seen God. अब मैंने परमेश्वर को देख लिया है। So many people in this world are wandering here and there ऐसे कई लोग हैं जो इधर उधर भटकते रहते हैं to see the eternal God. उस अनंत काल के परमेश्वर को देखने के लिए। Only when you enter into heaven after death you can see God. परंतु मृत्यु के उपरांत जब आप स्वर्ग में पहुंचेंगे तभी परमेश्वर को आप देख सकते हैं। But in God you can see Jesus. और परमेश्वर में आप प्रभु यीशु मसीह को देख सकते हैं। But Jesus is still with us. मगर यीशु हमारे साथ अभी That's भी why है। his name being called Emmanuel. इसीलिए उसका नाम इम्मानुएल रखा गया। What a great joy. कितना बड़े आनंद की बात What a है, great happiness. कितना बड़ी खुशी की बात है। And not only that, और सिर्फ उतना ही नहीं, angel said his name shall be called as Jesus. स्वर्गदूतों ने कहा कि उसका नाम यीशु रखा जाए। Jesus means the Redeemer, यीशु का मतलब है बचाने वाला, the one who rescues us, जो हमें बचाता है, forgive all our sins, हमारे सारे पापों से बचाता है और उनको क्षमा देता है and save us from the hands of the Satan. और शैतान के चुंगल से हमको छुड़ाता है। Matthew 1:21 says like that. मत्ती 1:21 में हम इसको पाते हैं। So wherever Jesus is there, तो जहाँ कहीं भी यीशु होते हैं, wherever people are calling unto him, उसको जहाँ कहीं भी लोग बुलाते हैं, he is ready to forgive their sin वो उनके पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है and also ready to wipe away the consequence of the sin. और वो उनके पाप के परिणाम और फल को भी मिटा देगा। Sometimes we used to say this family is affected by the karma. कभी कभी हम कहते हैं कि ये परिवार अपने कर्म भोग रहा है।
or they will be punished in the rebirths and so on. या फिर पुनर्जन्म में उनको दंड दिया जाएगा। But Jesus just came परंतु यीशु आया to forgive our sins ताकि हमारे पाप क्षमा किए जा सके and also to wipe away our consequences. और साथ ही साथ उसके सारे परिणामों को दूर किया जा सके। He did that उसने वो किया concerning the paralytic man. उस लकवा ग्रसित व्यक्ति के साथ। Matthew 9:1-9. मत्ती 9:1-9। First he forgiven his sins सबसे पहले उसके पापों को उसने क्षमा and किया then restore him to good health. और उसके बाद उसको अच्छा स्वास्थ्य दिया। So what a great joy. कितनी ही बड़ी आनंद की बात है। Mankind is sacrificing everything मनुष्य अपना सब कुछ बलिदान कर देता है for the forgiveness of sin. ताकि अपने पापों से उसको क्षमा मिल सके। Right from the beginning of the world. इस संसार की शुरुआत से लेकर, But he couldn't find any remedy. मगर उसको कोई समाधान अभी तक नहीं मिल पाया। Even though he sacrificed so many animals कई जानवरों को तो उसने बलिदान दे दिया, that couldn't give him any repentance or transformation. मगर उसके अंदर कोई पश्चाताप या परिवर्तन नहीं आया। Only for that moment he was thinking. कुछ क्षण भर के लिए उसको महसूस होता था, But since they were animals, they were not able to transform his conscience. परंतु बलिदान जानवरों का था, इसलिए वो कभी भी उसके विवेक को बदल ना पाए They were not able to turn him from evil deeds. और उसको वो बुराई के रास्तों से हटा ना पाए। But when God himself, in the name of Jesus, मगर परमेश्वर ने जब अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, just born to be crucified, क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए ही जो पैदा हुआ, carried our sins, हमारे पापों को लेकर, then the peace was possible. तब शांति संभव हो पाई। Peace with God, परमेश्वर के साथ शांति, communication with God. परमेश्वर के साथ वार्तालाप, Because our God cannot even look at any evil at all. क्योंकि वो कोई भी दुष्टता को सहन नहीं कर सकता। He himself without sin. वो खुद पाप रहित है, So Jesus also without sin. इसलिए यीशु भी पाप रहित है। So in heaven there is no sin. स्वर्ग में कोई पाप नहीं पाया जाता, There's no sorrow. वहां पे कोई दुख नहीं है। So today, सो आज let Jesus born in your heart. यीशु को आपके अंदर जन्म लेने दे। That brings us great joy. वो आपके लिए बड़ा आनंद का कारण होगा। Has he forgiven us? और जैसे उसने हमें क्षमा किया, Let us forgive our enemies हम अपने शत्रुओं को भी क्षमा and करें reconcile with each other. और एक दूसरे के साथ फिर से संबंध Let us not बनाएं। celebrate this festival only in a festive manner, सिर्फ एक त्योहार होने के नाते हम इस त्योहार को ना बनाएं, but with a true love. परंतु सच्चे प्रेम के कारण बनाएं। And let us also help others, और हम दूसरों को भी मदद करें, the poor and the needy. जो कि गरीब हैं और जरूरतमंद हैं। Let us make this glad tidings to be spread all over the world. ये शुभ संदेश हम सारे संसार में फैलाने का प्रयत्न करें। And lastly, और आखिर में angel said, स्वर्गदूत ने कहा, his name will be called as Lord Jesus Christ. उसका नाम प्रभु यीशु मसीह होगा। Christ means anointed. मसीह का मतलब है अभिषिक्त। Normally the kings will be anointed by someone. साधारण तौर से राजा लोग अभिषिक्त किए जाते हैं किसी के द्वारा। David anointed by the great prophet Samuel. दाऊद को महान भविष्यवक्ता शमूएल ने अभिषिक्त किया। Moses anointed Aaron. मूसा ने हारून को अभिषेक दिया। So the angel said, स्वर्गदूत कहता है, the Holy Spirit will come into your womb, पवित्र आत्मा तुम्हारे कोख के अंदर आएगा, which never been exposed. जो कभी भी प्रकट नहीं किया गया है। And the Holy Spirit will become a child. और वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो बच्चा पैदा होगा। Can you imagine? क्या आप सोच सकते हैं? So even the birth of Jesus Christ full of Holy Spirit anointing. यीशु मसीह का पैदा होना भी पवित्र आत्मा के अभिषेक के कारण था। Overflowing anointing. वो उमड़ता हुआ अभिषेक, Just like a Niagara Falls, जिस प्रकार से नयाग्रा फॉल्स Victoria है Falls, या विक्टोरिया फॉल्स है, overflowing and flowing and flowing. उमड़ता हुआ और उमड़ता हुआ। There's nothing inside the womb of Mary, उस मरियम के कोख में कुछ भी ना था, but Holy Spirit परंतु पवित्र आत्मा from a child. एक बच्चे को पैदा The करता है। child right from the beginning filled with the Holy Spirit. वो बच्चा जो शुरुआत से ही पवित्र आत्मा से भरा था, Even when he was 30 years old, और जब वो 30 साल का था, he had been filled with the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा से भर गया। Matthew 4:1. मत्ती 4 का 1।
Luke 4:1. लूका 4:1। And he had been filled with the Holy Spirit anointing और वो पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गया without measure. बिना किसी सीमा या नाप के। John 3:34. यूहन्ना 3:33। So what's happened? तो वहाँ क्या हुआ? If you read Isaiah chapter 61:1-4, यशायाह 56 उसका 1 से 4 तक अगर पढ़ते हैं, God has filled him with the anointing of the Holy Spirit परमेश्वर ने उसको पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर to दिया deliver the people, those who are in prison, ताकि उनको बचाया जा सके जो कारागृह में पड़े हैं, to bring the people out of darkness into light, ताकि लोगों को अंधकार से ज्योति में लाया जा to सके, open the blind eyes, अंधों की आंखों को खोला जा सके to make the dead to rise again, और मृतकों को दोबारा जी उठाया जा सके to bring forth the cloth of joy और उस आनंद के वस्त्र को पहनाया जा सके, instead of the torn cloth of lamentation. वो फटे छितड़े दुख के कपड़ों को हटाकर Desolation become the fertile land. बंजर भूमि उपजाऊ खेत बन गए। Wherever the Holy Spirit anointing, जहाँ कहीं पवित्र आत्मा का अभिषेक है that's a new creation. वहाँ पे एक नई सृष्टि है। Wherever the Holy Spirit, जहाँ कहीं पवित्र आत्मा है God is with us. परमेश्वर हमारे साथ है। 2 Corinthians 3:17. दूसरा कुरिन्ती 3:17। That's why angel named him इसीलिए स्वर्गदूत ने उसको नाम रखा Lord Jesus Christ the Savior. प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता है। So only in Christ Jesus तो इसलिए सिर्फ यीशु में there's a fullness of anointing. परिपूर्ण अभिषेक है। Whenever you speak about Jesus, जब भी आप यीशु के बारे में बात करते with the हैं anointing of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा something great will happen. कुछ बड़ा होता है, Great what you cannot even imagine. इतना महान कि जिसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर A सकते। great thing will happen. बड़े महान कार्य होते हैं। I was preaching in one place, मैं एक जगह प्रचार कर रहा था, and suddenly the Lord opened my spiritual eyes. अचानक से परमेश्वर ने मेरी आत्मिक आंखों को खोला Some 60 miles away, और कुछ 60 मील दूर there was a government hospital. वहाँ पे एक अस्पताल था सरकारी। There was a lady वहाँ पे एक औरत थी, who had been deserted by husband, उसके पति ने उसको छोड़ दिया था, but carrying a 3 years old son. परंतु वो 3 साल के बच्चे को लेकर चलती थी। He was already dead. वो पहले से ही मृत हो By चुका means था of heart problem. दिल की समस्याओं के कारण, But her sister and mother-in-law attend the meetings. मगर उसकी बहन और सास मीटिंग में आए हुए थे। And during the prayer time, the God Almighty called the name of the mother-in-law and the sister. पवित्र आत्मा ने मीटिंग के बीच में सास और बहन के नाम को लेकर बुलाया Saying everything promptly and correctly. और उनसे जो कुछ हो रहा था बिल्कुल साफ तौर से बताया। Your sister Rajani is in the government hospital. तुम्हारी बहन रजनी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, The son was dead. उसका बेटा मृत है। And she already informed all of the relations उसने अपने सारे रिश्तेदारों को सूचित कर to दिया prepare for burial. कि उसको दफनाने का इंतजाम किया जा सके। But the anointing of the Holy Spirit in Jesus प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा का अभिषेक just raised the son. उस बच्चे को जिला देगा। Believe that. इस पर विश्वास करें। And everybody heard that. और सब ने वो सुना But after some time, और कुछ समय बाद they came to our meeting and bear witness. वो हमारे मीटिंग्स में आए और गवाही दी। When this young lady holding the dead body of the son, जब ये औरत अपने मृत बच्चे को अपने गोद में लिए हुई थी, the anointing of the Holy Spirit gone all the way, पवित्र आत्मा का अभिषेक वहां तक पहुंचा, touch him and raise him up. उसको छूकर उसको जिला दिया। So the anointing of the Holy Spirit इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक was upon Jesus. वो यीशु के ऊपर था, That's why his name called as Christ. इसलिए उसका नाम मसीह कह के बुलाया जाता Not है। only that, सिर्फ उतना ही नहीं, anointing means king. अभिषेक का मतलब है राजा। The king first came as in human flesh, राजा पहली बार मनुष्य के शरीर में आया but he is going to come as a king of kings. और वो राजाओं के राजा के रूप में आने वाला है। All our modern devices हमारे सारे आधुनिक यंत्र are leading to the last stages of this world. इस संसार के अंतिम पलों तक हमें लेकर जा रहा है, So remember that. इसलिए उसको याद रखें। Expect the king's arrival. उस राजा के आगमन की अपेक्षा करें। When he comes, जब वो आएगा
The earth and the stars, everything are nothing before him. ये पृथ्वी, तारे, सब कुछ उसके सामने कुछ भी ना रहेंगे। He will come with a majesty and glory. वो उतने ही महान महिमा और तेजस के साथ आएगा। Let's prepare ourselves. आइए हम अपने आप को तैयार रखें यीशु के लिए। Shall we pray? कि हम प्रार्थना करें। Oh, mighty God, हे सामर्थी परमेश्वर, Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we thank you for this wonderful हम time. तुझे धन्यवाद देते हैं इस अच्छे भले समय के लिए। We thank you so much that you sent your beloved Son हम Jesus. धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने बेटे पुत्र यीशु मसीह को भेजा। Jesus, यीशु, thank you for your birth. धन्यवाद तेरे जन्म लेने के लिए। Thank you for your name, Jesus. धन्यवाद आपके नाम यीशु के लिए। Thank you for your name, Emmanuel. धन्यवाद आपके नाम इम्मानुएल के लिए। Thank you for your name, Christ. धन्यवाद आपके नाम मसीह के लिए। Come soon, Maranatha. जल्दी आ मारानाथा, Come now. अभी आ। Come now into our family and into our hearts. हमारे परिवारों में, हमारे दिलों में तू अभी आ जा। We want to see you. हम तुझे देखना चाहते हैं, We want to speak with you. हम तुझसे बात करना चाहते हैं। And come soon to the world. और संसार में जल्दी आ जा प्रभु, In Jesus' precious name. यीशु के बहुमूल्य नाम से। Amen. आमीन। We wish you a very happy Merry Christmas once again. एक और बार मैं अपने दिल से आपको क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूँ।